Dear parents and dear students, welcome to Erudite School of Learning Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6th, Subject Science Chemistry, Chapter number 6 and Lecture number 6. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। जैसे ही स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल continue from the same page, and in the previous lecture we have learned about the drought and its effect. Like, drought means the scarcity, water scarcity in a particular area for a long time due to no rainfall or no supply of the water there. And the effect caused by the drought is famine, that means lack of food and lack of plants, animals and lives there. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है? पानी की कमी आना। लंबे समय तक एक पर्टिकुलर एरिया में क्या ना पानी की कमी आना या पानी का सप्लाई ना होना, उसे हम कहते हैं ड्रॉट। ड्रॉट किस वजह से होता है? रेनफॉल कंटिन्यू बहुत दिनों या महीनों या सालों तक रेनफॉल ना होना। ड्रॉट के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी थे, जैसे खाने की कमी आना जिसे हम कहते हैं फेमाइन, भूखमारी जिसे हम कहते हैं फेमाइन, और भी बहुत सारे उसके इफ़ेक्ट थे, जैसे प्लांट एनिमल्स का मर जाना या फिर क्रॉप का वहाँ पे पैदाइश नहीं होना, सामानों के रेट बढ़ जाना, सॉइल इरोजन होना, ये सब। आज हम उसके जस्ट ऑपोजिट पढ़ेंगे, दैट इज़ फ्लड्स एंड इट्स इफ़ेक्ट। टुडेज आवर टॉपिक इज़ फ्लड्स एंड इट्स इफ़ेक्ट. This is just opposite of the drought. Overflowing of water from the river and streams into the field and homes is called flood. Some of the consequences of the flood are given below. That means in drought it was the water scarcity, lack of water. And in flood there is a overflowing of the water from the boundaries of the river and the stream that enters into our field in our residency area and the homes and the field, that is known as flood. And they also have some bad consequences of the flood. फ्लड क्या होता है? ड्रॉट का जस्ट ऑपोजिट। ड्रॉट में क्या था? वाटर की, पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो रही थी, कमी आ रही थी। लेकिन फ्लड में क्या हो रहा है? वाटर का क्या हो रहा है? ओवरफ्लो हो रहा है। रिवर, स्ट्रीम्स या जो भी नेचुरल वाटर बॉडीज़ है उनकी बाउंड्री से क्या हो रहा है? वाटर बाहर निकल के हमारे रहने की जगह या हमारे खेतों में या हमारे एरिया में जब वाटर एंटर होता है, बहुत ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी या बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, तब उसे हम कहते हैं फ्लड। फ्लड मीन्स बाढ़। जैसे ड्रॉट के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस से रिजल्ट्स थे, बैड इफ़ेक्ट थे, वैसे ही फ्लड के भी क्या है? कुछ दुष्प्रभाव हैं। लेट्स से पैनिक, इंजरीज एंड डेथ। पैनिक मीन्स टू गेट suffocated, to get hyper. Injuries and death. पैनिक मीन्स घबराना, इंजरीज मीन्स घायल होना, एंड दैट मीन्स मरना. Heavy rains, as seen in recent flood in Mumbai, causes panic among the people. Many old people, children, and physically weak persons suffer from injuries and even die on the account of the panic. That means when there is a heavy rainfall, the people start running from here and there in search of safe place, in search of safe shelter, to have a safe shelter. This is called panic. Panic means to get hyper. The panic people moves from here to there to get the safe place, and uh, in these steps they have taken, many of the people, like old people, like children and physically weak, that means which are not able to move properly,
get suffer from the injuries and even die due to not able to get the safe place. पैनिक का मतलब होता है घबराना। जब भी भारी बारिश या बाढ़ आती है या कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज़ आती है या कोई भी आपदा आती है, तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इधर से उधर भागते हैं बचने के लिए, और यही चीज़ उनकी क्या बनती है, मौत का कारण या घायल होने का कारण बनती है। लोग यहाँ से वहाँ सेफ प्लेस के लिए भागते हैं, लेकिन कुछ पीपल जैसे बूढ़े लोग हो गए या छोटे बच्चे हो गए या फिज़िकली अनएबल, फिज़िकली मीन्स किसी के पैर में लगी हुई है, किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, जो लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी हेल्प के नहीं जा सकते, वो लोग इन सब के बीच में क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, और ऐसे लोग घायल भी हो जाते हैं या कभी कभी क्या होता है, मर भी जाते हैं। नेक्स्ट, वाटर लेवल. Water level in the rivers, lakes and pond rises. Obviously, if there is a flood, that means the water level in the river, lakes, dams, ponds in the natural water body rises, and then the overflow, the water comes out from the boundaries and enter into our residency in our field, etc. area. वाटर लेवल क्या हो जाता है, फ्लड में बढ़ जाता है। ऑब्वियसली फ्लड का मतलब बाढ़ है, जो अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो रिवर्स या नेचुरल वाटर बॉडीज़ है, उनकी बाउंड्री क्रॉस करके जो एक्स्ट्रा वाटर हमारे घर के एरिया या फील्ड, खेत बाड़ी, खेतों में वगैरह जो घुसा है जो पानी, तो किस वजह से घुसा है, क्योंकि जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ है उनके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा क्या बढ़ गया था, लेवल बढ़ गया था, और इस वजह से वो वाटर उनकी बाउंड्री को क्रॉस करके हमारे एरिया में एंटर करता है। Next is soil erosion. We have learned that the meaning of soil erosion means the movement of the soil from one place to another place in the bulk. सॉइल इरोजन का मीन्स क्या होता है, सॉइल का एक जगह से दूसरी जगह किसी भी कारणवश, बारिश की वजह से या वाटर फ्लो ऑफ वाटर की वजह से या हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाना, उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। Heavy flood brings about erosion of soil from the field, making them barren and infertile. Barren and infertile means the land have no more capacity to grow the plants. Heavy rainfall, the flow of water, when the flow of water take away the soil from one place to another place and causes the soil erosion in that area from where it's taken away the soil, which causes the land to be get infertile or barren, that means not able to grow plants in that. सॉइल इरोजन हैवी फ्लड की वजह से, हैवी वाटर फ्लो की वजह से, भारी पानी की वजह से, पानी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को बहा के ले जाता है, और जिस जगह से मिट्टी को बहा के ले गया वहाँ पे क्या हो जाती है, मिट्टी की कमी, और मिट्टी ही नहीं होगी तो प्लांट्स कैसे वहाँ पे ग्रो करेंगे, क्योंकि सॉइल के अंदर ही सारे मिनरल्स, वाटर और क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ज़रूरत है, रूट सॉइल में से ही लेती है, लेकिन अगर वहाँ सॉइल ही नहीं होगी तो वो ज़मीन क्या हो जाएगी, बैरन। बैरन मीन्स बंजर, और इनफर्टाइल मीन्स इनफर्टाइल और बैरन का मीन्स क्या हो गया, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में सॉइल की कमी होने की वजह से वो ज़मीन क्या हो गई, बंजर और उपजाऊ नहीं रही, अब उसमें और प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। Next is damage to crops. Crops get submerged under the water, leading to the loss of production of useful food items. That means due to the increase in the level of water in the field, the crop get sink in that water and can lose their lives. जब खेतों में पानी का लेवल बढ़ जाता है, पानी बहुत ज़्यादा घुस जाता है, एंटर हो जाता है, तो वहाँ पे जो क्रॉप्स, जो फसल लगी हुई है वो क्या होती है, पानी में डूब जाती है, और इस वजह से सारी फसलें क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और इससे हमें क्या लॉस होता है,
जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है, जो हमने मेहनत की है फार्मर्स किसानों वगैरह ने, उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, प्रोडक्शन का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट, डिजीज़। फ्लड लीड्स टू डिजीज ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ फ्लड वाटर विद द वेस्ट मटेरियल एंड waste water. Obviously, when the water level is increased, the flood has come. The flow of water bring the waste water and all the waste material along with it into our residency area, into our field, into our living area. So, and that wastewater and the waste material lead to give rises to the bacteria, more virus, and which causes the disease. नेक्स्ट है हमारा बीमारियाँ। जब फ्लड बाढ़ आती है तो उसमें जो वाटर का फ्लो हमारे एरिया में ज़्यादा, जब वाटर तेज बहाव के साथ हमारे रहने की जगह या हमारे खेतों में एंटर करता है, तो अपने साथ जो भी जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो आसपास कचरा वगैरह होता है, ये जो नालियों में वेस्ट पानी होता है, वो भी क्या होता है, उन सब के साथ उस वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और वो फिर हमारे रेजिडेंसी एरिया में आता है, रहने की जगह पे एंटर होता है। तो वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल वो जो पानी के साथ मिक्स हुआ है, उसकी वजह से नए नए क्या होता है, बैक्टीरिया जन्म लेते हैं वेस्ट वाटर या वेस्ट मटेरियल की वजह से, और वो क्या करते हैं, नई नई बीमारियों को जन्म देते हैं। लॉस ऑफ habitat of plants and animals. Due to the flood, the living place of many animals and the plants are lost, causing much damage to the flora. Flora means plants, and fauna. Fauna means animals of the affected area. That means those plants and animals living in particular area where the flood has occurred, that causes the loss of living place or the shelter of many plants and animals, and causes damage and can destroy the flora means plants and fauna means animals of that particular area. मतलब जहाँ पे बाढ़ आई है, जहाँ पे बाढ़ आई है, वहाँ पे रहने वाले जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं, वाटर लेवल इंक्रीज़ होने के कारण, पानी के कारण क्या हो जाता है, उनके रहने की जगह क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और इस वजह से कितने ही हज़ारों एनिमल्स या प्लांट्स अपनी ज़िंदगी को खो बैठते हैं या अपने रहने की जगह को डिस्ट्रॉय खो देते हैं। सो हेयर वी कंप्लीट आवर लेक्चर एंड इट्स होमवर्क टाइम। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 लेक्चर नंबर 6। फर्स्ट इज barren. Barren means banjar. Flora means plants and fauna means animal. Note, send your daily homework before 9 o'clock every day in a good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. Note, डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 सेंड करना है। Thank you. Until then, have a nice day.